আমি এই মুহূর্তে রয়েছি গোবরডাঙ্গায় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমে। যেটা বলতে ভালো লাগছে, স্বামীজির সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তার ফলো আপ অ্যাকশন তো করতে হয়, আর খবরও তৈরি করতে হয়। খারাপ খবর যেমন টেররিস্টরা ট্রেনিং নিয়ে মানুষ মারবে বলে প্র্যাকটিস করে 1 বছর ধরে, কখনো 2 বছর ধরে, কখনো সারা জীবন ধরে কেউ না কেউ ট্রেনিং দিয়েই যাচ্ছে। তাহলে আমাদের দেশে সাধু সন্তের তৈরি করা হবে না কেন? তারা কেন বাচ্চা বয়সে সংসার ছেড়ে চলে আসবেন? সাংসারিক মানুষদেরকে নিয়ে আশ্রমের সঙ্গে কোনো একটা যোগসূত্র করে কেন একটা সিস্টেম গড়া হবে না, যেখান থেকে আপনার ইন্স্যুরেন্স হতে পারে, যেখান থেকে আপনার মেডিকেল বিল পেমেন্ট হতে পারে, যেখানে দেহদান করলে আশ্রম আপনাকে একটা বড় অ্যামাউন্ট দিতে পারে, সেটা হয়তো এলআইসি নয়, এবং এলআইসি বা অন্য প্রকল্প যাতে 15 বছর পর আপনি পেনশন পেতে পারেন, সেই লড়াইটা করার জন্য আজকে আমি গোবরডাঙ্গায় এসেছি। এবং বলতে ভীষণ ভালো লাগছে যে লড়াই মানেটা কি? লড়াই মানে হিমালয় চড়া নয়, লড়াই মানে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ নয়, লড়াই মানে হচ্ছে দেশের গরিব মানুষেরা একদিন বড়লোক হবে। আমিও চাকরি হারিয়েছি 2000 সালে। আজকে লকডাউনে যারা চাকরি হারাচ্ছেন তারা হয়তো নতুন করে চাকরির মানেটা বুঝতে পারছেন। আজকে যারা চাকরি হারাচ্ছেন, যারা পার্টি করেন, তারাও মানেটা বোঝেন না যে এই চাকরির রিভার্স প্রসেসটা কী হবে। মানে চাকরি যাতে না হারাতে হয় তার রিভার্স প্রসেসটা হচ্ছে কি করে চাকরি আপনি জেনারেট করবেন। তার জন্যে সোশ্যাল ক্যাপিটাল বানাতে হবে, তার জন্যে মানুষদেরকে খেটে প্রতি মাসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফান্ড করতে হবে। আজকে স্টুডেন্টরা যারা কালকের ভবিষ্যৎ হতে যাচ্ছে তাদেরকে দিয়ে কাজটা করিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফান্ড করে তাদেরকে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি খোলাতে হবে, বা যারা ইন্ডাস্ট্রি খুলেছেন তাদের উপরে ইনভেস্ট করে আরও এক্সপ্যানশন করতে হবে। আশা করি এই ছোট্ট আমার বক্তব্য আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। যারা এবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাদেরকে বলবো পাড়াভিত্তিক 7 জনের টিম করে করে, মায়েরা হতে পারেন, ইউথরা হতে পারেন, বাবারা হতে পারেন, যারা চাকরি হারিয়েছেন তারাও হতে পারেন। আপনারা ছোট ছোট টিম করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। যেখানে যেখানে আশ্রম আছে, যদি নাও থাকে তাহলে আপনারা কীভাবে দেশের স্বার্থে কাজ করতে পারবেন সেটাকে নিয়ে আমরা ডিটেইলি ডিসকাশন করব। আজকের মতন এতটাই। এবং সারা জীবন ধরে যেটা চলবে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম। যারা এই ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম করতে চান, ভারতের ভবিষ্যৎ ওই আংটি বা আপনার হাতে কি লেখা আছে, কপালে কি লেখা আছে সেটা নয়। আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে সারা জীবন ভালো করে বাঁচবে, তার অর্থনীতিকে স্ট্রং করার নাম হচ্ছে ভাবনা মুখ। তাকে স্ট্রং করার জন্যে কাজ করছেন ডক্টর অরুণ কুমার রাজ, তাকে স্ট্রং করার জন্য খাটছেন ডক্টর পি.কে. মণ্ডল, তাকে স্ট্রং করার জন্য খাটছেন আমার বন্ধু এবং ইন্সপিরেশন প্রণব কুमार सेन ও আমি नरेश जैन। धन्यवाद। कृपा जी, आपसे जो पहला क्वेश्चन था, हमारा देश तो गरीबी देश है बोला जा सकता है, तो इधर आप लोग ये आउटस्टैंडिंग जो काम कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, धन्यवाद। मैं कृपा निधि मिश्रा, डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो आपने बताया देश गरीब देश है, नौकरी भी नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ गरीब देश गरीब नहीं है, लोगों की सोच गरीबी है। अच्छा। तो उस गरीबी सोच को दूर करने के लिए हम लोग उसको इकट्ठा एक प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट करने की सोचा है। जैसे अभी लोग गरीब क्यों होते हैं? जहाँ पर हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ जिसकी कमी हो जाती है वो देश गरीब से गरीब ही रहेगा। अगर शिक्षा को मजबूत किया जाए, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य भी होता है, लोगों का एजुकेशन भी होता है, इस लेवल को अगर हम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं लोगों को, तो ऑटोमेटिकली हमारा देश गरीब क्यों कहलाएगा। ये अमीर से आज के चाइना और अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है। जैसे अभी देख रहे हैं, अभी आज के डेट में बेरोजगारी की संख्या हमारे देश में बढ़ते चली जा रही है, बढ़ रही है और आगामी और कई साल तक बढ़ती रहेगी। उसको हमने कुछ परसेंटेज तक 20 से 30% दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। लोगों को कैसे, बेरोजगारों को उचित शिक्षा मिल पाए, उचित रोज़गार मिल पाए। वो रोज़गार कैसे मिलेगा उसके लिए हमने अभी देखा है, अभी आपने देखा होगा, एक लोग ज़्यादातर एजुकेशन में भागते हैं, एक मेडिकल एजुकेशन या इंजीनियरिंग एजुकेशन। इंजीनियरिंग एजुकेशन एक हो गया, लोगों को रोज़गार से जोड़ने का एक साधन हो गया। मेडिकल एजुकेशन का एक ऐसा जरिया है जिसका ज़्यादा पैसा है वो मेडिकल एजुकेशन में जाता है, जिसका कम पैसा है वो एजुकेशन को नहीं ले पाता है, या मजबूरन वश उसको एक आर्ट्स की पढ़ाई करता है, कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, और जिसका थोड़ा सा संबल है वो साइंस की पढ़ाई करता है। साइंस की पढ़ाई करने के बाद टेक्निकल में चला, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करता है, ये बीटेक करता है, एमटेक करता है या एमबीए करता है। उसके करने के बावजूद भी वो बेकार होकर निकलता है। जिसका थोड़ा पढ़ने की कैपेसिटी, जिसका टेक्नोलॉजी अच्छा है, जिसका दिमाग अच्छा है, वो किसी गवर्नमेंट में अपना निकाल लेता है।
जिसका नहीं है वो बेकार बैठा रहा या घर में बेकार होकर वो बेकारी की संख्या में अपना नाम लिखवा लेता है। उन लोगों को टारगेट करने के लिए हमारी संस्था कार्य कर रही है पूरा भारतवर्ष में, जिसमें हमने टारगेट ले रखा है कम से कम साल में 10 लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को अपने इस टीम में जोड़ना, उनको फ्री में एजुकेशन देना, एजुकेशन के साथ में उनको बेरोजगारों को रोज़गार देना। रोज़गार माने हम ये नहीं बोलेंगे वो IAS की नौकरी लगवा दें और IPS की नौकरी लगा दें, ठीक है, उसको हम इतना एजुकेटेड कर दें कि वो एक अपना परिवार चला सके, अपना खुद का परिवार चला सके, अपने साथ में जो रहने वाले 2-3 लोगों का परिवार अपना चला सके। तो हम बेसिक एजुकेशन, बेसिक टेक्निकल एजुकेशन जो होता है ITI लेवल की हो गई, डिप्लोमा लेवल की हो गई, BTech लेवल की, इस एजुकेशन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। साथ एजुकेशन तो हो गया, साथ में एक रोज़गार, एक इंडस्ट्रियल रोज़गार रहेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगा और इंडस्ट्री में रह के पढ़ाई के साथ साथ अपना एजुकेशन भी अपना पूरा कर सकता है बिना खर्च किए। तो इस तरह का प्रोग्राम अपना चला। तो अपना देश गरीबी क्यों, अगर हमने 10 लाख लिया, बीड़ा उठाया और कोई संस्था ऐसे आता है वो भी 10-20 लाख को बीड़ा उठा लेता साल में, तो ऐसे ही धीरे धीरे अपना बेरोजगारी अपने दूर हो सकती है। कृपा जी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं, हमारे देश के स्टूडेंट्स लोग तो पैसा खर्चा करके ही पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लोग पैसा खर्चा करके पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स लोग के लिए एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फंड ऐसा क्यों नहीं सोचा जा सकता है, ताकि जो क्लास 1 का जो बच्चा है और जो कॉलेज में पढ़ रहा है, सब कोई महीने में 30 रुपया इस फंड में डोनेट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस फंड से तो आप इंडस्ट्री खोल सकते हैं, इस फंड से उसको डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं। जो लड़का लोग 12% इंटरेस्ट में बैंक से लोन लेता है, वो विदाउट इंटरेस्ट इस फंड में पैसा दे सकता है। निश्चित रूप से आज फादर का पैसा से वो रेंट लेकर रहता है, तो वो फ्लैट इस पैसे से हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं आपके थ्रू? हाँ जी, आपने जो सलाह जो दिया है कोऑपरेटिव स्टूडेंट कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल फंड के बारे में, बहुत अच्छी उसमें मार्गदर्शन अगर अब मिलता है अपने को, तो हमारे पास ऐसे ही पूरा भारतवर्ष में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। तो अगर आपका प्रपोजल अच्छा लगता है, इस प्रपोजल को हम लोग हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं। हर एक इंडस्ट्री में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के साथ साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको जॉब नहीं मिल रहा वो घर में बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं और उनके पास एक्सपोजर भी नहीं है जो कहाँ जाके नौकरी मिलेगा। निश्चित रूप से तो आपका एक जरिया जो है इंडस्ट्रियल फंड वाला, उस प्रपोजल को हमारे प्रपोजल के साथ जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा प्लेटफार्म हमारा बन सकता है। और लोगों को एक फ्री में लोन लेने के साथ, पढ़ाई के साथ साथ लोगों जो लोग लोन ले चुके हैं वो अपना चुकता भी सही तरीके से कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। हाँ, विदाउट इंटरेस्ट में, ताकि सही पढ़ाई भी कर सकें और एक बेरोजगार आदमी घर में कुछ रोजगार का एक साधन उसको मिल सके। एजुकेशन हैज़ बिकम द कॉस्टलीस्ट सब्जेक्ट नॉट ओनली इन इंडिया, all over the world. Yes. If it is financed by people of India, students of India and their parents, ये एक आइडिया ही है। जैसे आप एक गाछ लगाते हैं, वो ऑक्सीजन देता है, तो 30 रुपये का अगर हम लोग गाछ लगाएं, जो मेरे काम में आएगा, मेरा पढ़ने के काम में आएगा, मेरा फ्लैट खरीदने के काम में आएगा, तो 10,000 की जगह में हम 2,000 रुपये देकर जादवपुर में पढ़ने जाएंगे रेंट लेकर। निश्चित रूप से। तो हम कृपा जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो एपिसोड बनेगा, इसको हर स्टूडेंट को सब्सक्राइब करने बोलिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फंड अगर खुलता है तो एवरी स्टूडेंट, आई थिंक इन टाइम टू कम, विल कम अंडर दिस फोल्ड एंड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया विल राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आई होप। श्योर सर, आपका प्रपोजल बहुत धन्यवाद इसके लिए मैं करता हूँ आपको। आपने कुछ सोच रखा है स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ अगर हमारे अलायंस हो जाती है राइट, तो हम लोग भारतवर्ष में इस चीज़ को हर गांव कस्बे में इसको हम लोग मार्गदर्शन कर पहुंचा सकते हैं। और पहुंचाने के लिए सिर्फ ऑनलाइन में नहीं रहेंगे, सर जी को बोलेंगे जो नरेश जैन का आइडिया, भावनामुख एक चैनल, उनका कंपनी का नाम, हर जगह पोस्टरिंग करके हम लोग लगा देंगे। निश्चित रूप से भावनामुख चैनल जो प्रयास कर रही है आज के डेट में, उस चीज़ों को लोगों तक हर मोबाइल में पहुंचना और हर लोगों को सब्सक्राइब करके इस चीज़ों में क्या क्या इम्प्लीमेंट और क्या हो सकता है राइट। हाँ, उसके लिए जो सजेस्ट करें उस चीज़ को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से। एकदम धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। दादा दीदीरा শিখেছেন এবং প্রিয় ভিতরে লোক। তারপরে এর আগে ওরা একজন এসেছিল, দেখেছিল ওনারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
তারা কিছু করবার, মানুষের জন্য কিছু করবার চিন্তা ভাবনা নিয়ে সব বন্ধুরা সব একত্র হয়েছে। একত্র হয়ে তারা ঠিক করেছেন যে আমরা পূজার প্রাককালে আমরা শিশুদের জন্য আমরা কিছু কাজ করব। আমাদের দেশে প্রচুর মানুষ চাকরি করেন এবং তার সঙ্গে কিছু মানুষ রয়েছেন, খুবই কিছু পার্সেন্টেজে হবেন, যারা তার সঙ্গে সোশ্যাল কাজকেও জুড়ে নেন, যেটাকে নন কমার্শিয়াল বলে। ওনাদের আজকে আমার এখানে দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। আপনাদের যে প্রশ্নটা আমি করতে চাই, যারা অফিসে এই মুহূর্তে চাকরি করছেন, তাদের কি কোনো দরকার আছে এই ধরনের একটা সোশ্যাল ফান্ড তৈরি করে এইটাকে একটা কি বলবো সিস্টেম গড়ে নেওয়ার, যেখান থেকে এই আশ্রমগুলোকে ডিরেক্টলি তারা মাসিক হেল্প করতে পারবেন? দেখুন, দরকার সেভাবে নেই। দরকার হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই দরকার। এইসব বিদ্যাসাগর একটা কথা বলে গেছিলেন যে তোমাকে বেশি দিতে বলিনি কেউ, তুমি তোমার প্রয়োজনটা মিটে যাওয়ার পরে যেটা পড়ে থাকবে সেটা তুমি মানুষকে দাও। এবং আমরা প্রত্যেকে এখানে এস্টাবলিশড হওয়ার পর আমরা আজকে এই কাজটা ব্রতী হয়েছি। আমাদের গ্রুপটার নাম হচ্ছে প্রচেষ্টা। আমরা কোনো রকম নন প্রফিটেবল সংস্থা একটা, জাস্ট আমাদের ক্লোজ বন্ধুদের কাছ থেকেই আমরা ডোনেশন নিয়ে, এবং আজকে এটা আমাদের প্রথম কাজ, যেখানে আমরা এই পুজোর মুহূর্তে, আগমনীর মুহূর্তে আমরা কিছু বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। এবং এই যে হাসি ফোটানো, এটাই আমাদের কাছে দরকার, এর বেশি কিছু আমাদের দরকার নেই। ওই হাসিটুকুই আমরা দেখতে চাই। তাদেরকে জামা প্যান্ট, খাবার দাবার, খেলার সরঞ্জাম, এটা দিয়ে তাদের মুখে হাসিটা দেখতে পেলাম, সেটাই আমাদের আজকে বড় প্রাপ্তি। আর একটা প্রশ্ন, ফলো আপ অ্যাকশন বলে একটা কথা আছে। এই যে হাসিটা আজকে ফুটলো, উইল দিস বি এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, নাকি আজকের এন্ড করে আবার নেক্সট বছর পুজোর পর, পুজোর আগে? সত্যি কথা বলতে এটা আজকে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আমরা এটাকে কন্টিনিউ করতে চাই, এবং ওই কন্টিনিউ করতে চাই বলেই আজকে এটা দিয়ে আমরা কর্মযোগ্য শুরু করলাম। এরপরে পরবর্তীকালে আমরা আবার বন্ধুদের সঙ্গে বসে আলোচনা করব যে পরবর্তীকালে কোন জায়গাটায় আমরা সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতে পারি, যেটা নেশন বিল্ডিং ব্যাপারটা যেটা তৈরি হয়, সেটা আমরা মাথায় রেখেই এগোবো। এবং সেখানে আর্থিক সাহায্য বা আদার্স কীভাবে তোলা যেতে পারে সেই সমস্ত মাথায় রেখেই আমার পরবর্তী আমাদের পরিকল্পনা ঠিক করব। এই মুহূর্তে কিছু ঠিক করিনি, আজকে এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের আবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা হবে, তারপর আমরা ঠিক করব। কিন্তু ব্যাপারটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস।